Good morning, students. Today I'm going to start your new chapter from your Flamingo textbook, The Rat Trap. First, about the author. The author of the chapter is Slemma Elman Lagerlöf, was a Swedish writer whose stories have translated into many languages. A universal theme runs throughout all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. This story is set amidst the mines of Sweden. Rich in iron ore, which figures large in the history and legends of that country, the story is told somewhat in the manner of a fairy tale. Now, a general introduction, or you can say just I'm going to start the chapter. Here, the explanation. First, reading the chapter and then the explanation of the chapter. Page number 32. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not specially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rag, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. Now, some word meanings here. Odd moments, a short period of free time. Sunken means lowered. Gleamed means shone. Now, what explanation about it? Once there was a man who used to sell small rat traps made of wire. एक व्यक्ति था जो rat trap यानी चूहे के पिंजरे जो बनाकर बेचता था वायर्स के. These rat traps were made by him in free times. वो फुर्सत में उन rat traps को बनाता था. He used to collect the material required by begging from. वो मटेरियल्स कहाँ से इकट्ठा करता था? वो था तो गरीब, वो कहीं दुकानों से कलेक्ट करता था, बिग फार्म से कलेक्ट कर लेता था. उसका जो बिजनेस फिर भी जो है प्रॉफिटेबल नहीं था. उसे इसी कारण उसे स्टील भी करना पड़ता था, बैग बोरो भी करना पड़ता था अपने आप को सर्वाइव जिंदा रखने के लिए. और उसका चेहरा बिल्कुल ही, कपड़े बिल्कुल रैग थे, बिल्कुल ऐसे लगते थे बिल्कुल. हिज क्लोथ्स वेर ओल्ड एंड टोन, और चीक्स जो थे उसके लोवर्ड इनसाइडेड थे, भूख के कारण या कमजोरी के कारण दबे हुए थे, और मैल न्यूट्रिटेड वो व्यक्ति दिखता था, और भूख उनकी आंखों में झलकती थी. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड monotonous life can appear to such a vagabond who plouds along the road, left to the own meditation. But one day his mind had fallen in a line of thought which really seemed to him entertaining. Monotonous means boring, vagabond means wander, और plods means walks heavily. एक दिन उसके साथ क्या हुआ? The life of the rat trap seller was very sad and boring. उसकी जिंदगी बिल्कुल दुखी और बिल्कुल निराश थी, कोई उत्साह नहीं था, बोरिंग लाइफ थी उसकी. ही वॉज होमलेस एंड स्लोली विथ हैवी फीट, बिल्कुल घर नहीं था, बेघर था. ही वॉकड अलॉन्ग द रोड्स, बहुत भारी मन से घूमता रहता था इधर उधर. एक दिन उसके मन में एक विचार आया. वो विचार क्या था? बट वन डे ही गॉट लॉस्ट इन द सीरीज ऑफ थॉट्स. एक विचारों में वो खो गया, और उसने एक विचार उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. वो क्या था? ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ विच ट्रैप्स व्हेन सडनली ही हैज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विथ its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. It had never excited for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelters and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. As soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed it on him, and then everything come to an end. A bait means food placed on the hook to trap a rat. कोई चीज़ फंसाते हैं ना चूहे के पिंजरे में ताकि वो चूहा पकड़ में आ जाए, उसे बेट कहते हैं. और हियर इट इज बीन रेफर्ड टू द कंफर्ट और लाइफ विच इज ऑफर्ड बाय अ रैट ट्रैप समवन टेम्प्टेड, एंड टेम्प्टेड का मतलब होता है कन्विंस्ड हो जाना.
द मैन वॉज, एक तो वो व्यक्ति क्या विचार कर रहा था, थिंकिंग अबाउट द रैट ट्रैप एंड सडनली अ थॉट केम टू हिज माइंड। वो रैट ट्रैप के बारे में सोचा तो नहीं, विचार उसके मन में आया। ये जो सारी जो हमारी जो भव्य चीज़ें हैं, हमारी रोज़मर्रा की हमारी जो सुख सुविधाओं के साधन हैं, हमारे शहर हैं, हमारे गांव हैं, नदियां हैं, झरने हैं, ये सब जो भी चीज़ें हैं, ये सब क्या है, ये बेट्स है, जैसे कि रैट ट्रैप में होते हैं, हम रैट ट्रैप में लगाते हैं, लोग उनके प्रलोभ में फंसते हैं और अंदर चले जाते हैं और वो बंद हो जाती है दुनिया हमारे लिए। ये सब क्या है, विच वी ऑफर टू अ बिट टू कैच इट द रैट, जैसे ही अकॉर्डिंग टू हिम एज सुन एज समवन ट्राई टू कंफर्ट हिमसेल्फ विथ जॉय, कोई व्यक्ति अपने आप को कंफर्ट कर लेता है खुशी में, आनंद में, फूड शेल्टर सब में, तो वो किस में फंस जाता है, इस जाल में फंस जाता है। दुनिया एक जाल है ना, इसकी मोह माया में हम फंस जाते हैं, विच इज़ नोन एज अ वर्ल्ड। इस दुनिया के अंदर हम फंस जाते हैं इस मोह माया के जाल में, वो पूरा एक रैट ट्रैप है वर्ल्ड में, जो चीज़ें सुख सुविधा की है, ये सब चीज़ें हैं कि हमें प्रलोभन देती है, हम इसमें फंस के रह जाते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स never been very kind to him, so it gave him unusual joy to think ill of it in his way. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let himself be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. Cherished means to love or protect. Dreary means dull, ploddings means walk heavily, snare means trap. अब explanation. No one in the world had ever been kind to the rat trap seller. कोई व्यक्ति अभी तक उस rat trap वाले व्यक्ति के साथ कोई कभी kind नहीं रहा. So he started thinking of others. इसलिए वो दूसरे के बारे में सोचने लग गया. It becomes a favorite pastime for him. हमेशा फुर्सत में ऐसी तरह की चीज़ें सोचता था. During the dull moments, these thoughts made him happy. जब वो बिल्कुल दुखी रहता था, कुछ इस टाइप के विचार उसको बहुत खुश करते थे. सो ही कंटिन्यूड विथ थिंकिंग इट इल ऑफ दीज दोज हु आर नोन टू हिम, और ऐसे ही सोच के वो हो जाता था खुश. ही वुड इमेजिन दोज पीपल हु वर ऑलरेडी ट्रैप्ड इन द रैट ट्रैप इन द वर्ल्डली थिंग्स. उन लोगों के बारे में सोचता था जो इन सब सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, उनके बारे में सोचता है कि वो सब झाल में फंस गए हैं, दुनिया एक झाल है, उनमें ये फंस चुके हैं. एंड ऑल्सो दोज हु वेर अबाउट टू गेट रैट ट्रैप इन इट, और उनके बारे में भी जो उनको ये बहुत जल्दी ही प्राप्त होने वाला हो. अब वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज struggling along the road, he caught sight of the little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to seek shelter for night. Nor was he refused. Instead of four sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or children, was happy to get someone to talk to his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he craved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out of an old pack of cards and played enjoys with his guest until bedtime. अब यहाँ पे trudging means walking slowly. Craved off, you can say to divide something into parts. एमजॉल्स अ गेम प्लेड विथ प्लेइंग कार्ड्स. अब क्या हुआ, एक दिन इवनिंग के समय जब उसे रात होने लगी, उस जो रैट सेलर हैं, रैट ट्रैप सेलर जो धीरे धीरे चल रहा था, अंधेरा हो गया था, उसे वहाँ पर एक ग्रे कॉटेज दिखता है. वहाँ खड़ा हो जाता है जो रोड साइड की तरफ होता है. ही वेंट टू द कॉटेज एंड नॉक्ड एट द डोर. वो दरवाज़ा खटखटाता है और वो चाहता है, उस रात को रुकने की जगह चाहिए होती है. एट द डोर ही गेट शेल्टर फॉर दैट नाइट. फिर उसने उस जगह पर उसे बहुत आसानी से शेल्टर मिल जाता है. जनरली ऐसा होता है कि नॉट हेल्प्ड बाय एनीवन, कोई उसे हेल्प नहीं करता. पर इस समय क्या हुआ कि वो व्यक्ति बिल्कुल आराम से उसे हेल्प कर रहा था, वेलकम कर रहा था, क्योंकि वो व्यक्ति लोनली था, वो खुद भी अकेला था, उसकी ना पत्नी थी ना बच्चे थे, इसलिए उसने बहुत जल्दी उसे वेलकम कर लिया. उस ओल्ड मैन को रात के लिए कंपनी मिल गई और उन्होंने उसके लिए खाना बनाया, उसे टोबैको दिया, उनके साथ गेम्स भी खेले. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एंड जेनरस विथ हिज confidence as this with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramjo's ironwork and had worked on the land. Now that he was no longer able to do the day labor, it was his cow which supported him. Yes, the bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. अब यहाँ पे difficult word meanings.
Generous means liberal, confidence, secrets, prosperity, riches. Crofter, a person who works at rented farm. Bushy, Latin word है, इसका मतलब होता है boss. Bosch, used for a cow. Creamy means factory that produces cheese and cream. Creamery means krono, currency of Sweden. अब क्या हुआ कि जो ओल्ड व्यक्ति था बहुत जनरस था, लिबरल था, है ना, अपने सीक्रेट्स उसके साथ शेयर कर रहा था रैट ट्रैप सेलर के साथ। वो बता रहा था कि जब उसके दिन थे, है ना, क्या बता रहा था, रैट ट्रैप क्या बता रहा था, टेल हिम दैट ही वाज अ रिच मैन व्हेन ही यूज्ड टू वर्क ऑन द रेंटेड फार्म। जब वो रेंटेड फार्म पे वर्क कर रहा था, बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति था। एज ही वाज ओल्ड नाउ ही कुडंट वर्क, सो ही हैड टू डिपेंड अपॉन हिज काउ। अब जो बूढ़े हो गए, अब उस जगह वो काम नहीं कर सकते, तो वो अपने गाय के ऊपर निर्भर है। वो गाय बहुत दूध देती है, कम से कम वो इतना क्रीमी दूध देती है एवरीडे कि वो उसे सेल कर लेता है फैक्ट्री में जहाँ चीज़ वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, क्रीम प्रोड्यूस होती है वहाँ, और उसे इस महीने 30 क्रोनोस की इनकम हुई है उस गाय से। The stranger must have seemed incredulous, for that old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on the nail in the every window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kronal bills. This he held up before the eyes of his guest, nodding, knowing, and then stuffed them back into the pouch. अब क्या करा, अब उस व्यक्ति ने, the rat trap seller did not believe the old man's words that a cow could even earn him so much. वो बिलीव नहीं कर रहा था कि वो गाय भी इतना कुछ दे सकती। तो क्या करा, therefore the old man took a leather pouch in which hung on a window, took out 3 notes of 10 kroner each which were old and crushed. He showed these currencies notes to him, believed his words and then kept them again back into the pouch. उस व्यक्ति ने इतना वो सीधा था कि उसने उस व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए नोट्स जहाँ टंग कर रखा था उसने खिड़की में, वहाँ उसमें से निकाले, उसे दिखाए 10 क्रोनर्स के 3 नोट्स थे, और उसे वापस उस पाउच में डालकर टांग दिया। द नेक्स्ट डे the both men got up in the good session. The crofter was in hurry to milk his cows, and the other man probably thought that he should not stay in the bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the keys in his pocket. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each them went on his way. अब next day क्या हुआ, दोनों उठे। अब जो ओल्ड मैन था वो उसे काम पे जाना था, क्रॉफ्टर को वो दूध, गाय का दूध निकालने के लिए वो जल्दी में था। वो उठा तो उस रेड ट्रैप सेलर को लगा कि जब मालिक घर से बाहर जा रहा है तो उसे भी अब उठ जाना चाहिए। वो भी उठ के उसके साथ साथ बाहर चले जाते हैं। क्रॉफ्टर अपने घर के दरवाजे को लॉक कर लेता है, चाबी अपने जेब में डाल देता है। रेड ट्रैप सेलर उसे गुड बाय कहता है, थैंक यू कहता है, और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब आगे, but half an hour later the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however he only went up the window, snatched a panel, struck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in this place and went away. अब क्या हुआ, आधे घंटे बाद जो पेडलर था, सेलर था, वो वापस आता है। वो वापस आता है अपने वहाँ पर उस कॉटेज में अंदर नहीं जाता। वो क्या करता, खिड़की के यहाँ खड़ा हो जाता है, वहाँ पे वो पैनल्स तोड़ देता है, विंडो पैनल, और वहाँ जब पाउच टंगा रहता है उसको निकाल लेता है। उसमें जो पैसे रखे रहते हैं वो निकाल कर अपने जेब में डालता है और वहाँ से चला जाता है। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू।